میں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتے ہوئے اپنی قوم کی، اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے، اور تمام جنوں انس ان کے ساتھ تھے، اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے آپ علیہ السلام کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے کہ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں، مگر ہدہد کو نہ پایا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا کہ کیا ہے مجھ کو نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لاوے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں کہ آپ کے واسطے شہر سبا سے، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بولا ہدہد میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا تھا، اور اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کرو۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے، اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ ہیں جنوں انس ہوش و طیور اور جمیع مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے، اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں، اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا
जाता वहाँ हुदहुद को अपने साथ लेकर जाते थे और फिर उसको पानी के वास्ते भी भेजते थे। जहाँ वो पानी का निशान बता देता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों को भेजकर तालाब या कुआं खुदवा लिया करते थे और वहाँ से पानी मंगाते थे। अलगर्ज उस हुदहुद ने कहा कि मेरे साथ चलो और वहाँ चलकर बिल्किस दुख्तर नतराहील को देखो कि उसकी शानो शौकत कैसी है और उसके हुस्नो इखलाक को देखकर तुम खुश हो जाओगे। फिर मैं इसके कहने से इस जगह पर गया और शहर सबा में बिल्किस को देखा। एक तख्ते अजीम है कि तूलो अर्ज उसका 30 गज है और तमाम जवाहरात से मरसा और चारों पाए इसके याकूत सुरख और जबरजद और ज़ुमर्रद लाल के हैं और इस पर वो बैठी है और वो बेदीन है और वो आफताब परस्त है और वो अपना कोई शौहर भी नहीं रखती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने जो कुछ कहा मुझको हुआ, लेकिन तूने क्यों कर जाना कि वो बेदीन है। उसने जवाब में कहा कि जैसा कि फरमाया रब ताला ने कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद बोला कि मैंने पाया एक औरत बादशाही करती अपनी कौम की और उसको हर चीज इनायत की गई है, यानी कि मालो इसबाब हुस्नो जमाल और उसका एक तख्त शाही बहुत बड़ा है। और मैंने वहाँ ये भी देखा कि उसकी कौम उसको सजदा करती है और वो सब के सब सूरज को सजदा करते थे और उसी को खुदा मानते थे और हकीकी माबूद को कोई भी नहीं जानता था। ए नबी अल्लाह, मुझको आप कुछ खुल्लत अता फरमाइए ताकि मेरे पास आपका कुछ निशान बाकी रहे और फिर मेरे बाद मेरे फर्जंद भी आपको याद करते रहे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस हुजूर से कहा कि जैसा कि फरमाया रब ताला ने कि हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। यह सुनकर हुदहुद बोला कि ए नबी अल्लाह, आपसे झूठ नहीं कहता हूँ। और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि हुदहुद के सर पर जो ताज है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है। और फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इससे बेहतर खुल्लत चाहता हूँ आपसे कि जिसमें मेरी औलाद की बेहतरी हो। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कार कसास का तुझको और तेरी औलाद को मैंने दिया और तू बिल्किस के पास मेरा खत लेकर जा, जैसा कि फरमाया रब ताला ने। और कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि मेरा खत ले जा और वो खत ले जाकर उसकी तरफ डाल दो और फिर उसके पास से चले आओ और देखो कि वो क्या जवाब देती है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, सर महर सुलेमानी करके उस हुदहुद के हवाले किया और वो खत हुदहुद अपनी चोंच में लेकर शहर सबा में बिल्किस के दर पर जा पहुंचा। और एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान से बिल्किस के मकान तक 10 कोस का फासला था और हफ्तों कसरे मारला बिल्किस के बंद पाए, लेकिन इसकी खिड़कियां खुली हुई थी। इसके अंदर जाकर देखा तो बिल्किस को सोता हुआ पाया और इस खत को बिल्किस की छाती पर रख कर चुपके से बाहर निकल आया। जब बिल्किस बेदार हुई तो उसने वो खत अपनी छाती पर पाया और उसने उसके लाने वाले का उसे मालूम ना था और अपने दिल में कुछ खौफजदा सी हो गई। फिर उसने अपने कार परवाजों को बुलाकर उनसे पूछा कि चनांचे जैसा कि फरमाया रब ताला ने, और कहने लगी बिल्किस, ए दरबारियों, मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये खत किस ने डाल दिया है। और वो खत बड़ी इज्जत और अजमत का है और है वो हज़रत सुलेमान की तरफ से। और इस खत को शुरू भी अल्लाह ताला के नाम से किया गया है जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। और इसमें ये लिखा है कि तुम अपनी सल्तनत पर जोर बंद दिखाओ और मेरे पास मुसलमान होकर चली आओ। बिल्किस ने यह खत पाकर उसको बड़ी ताज़ीम और तकरीम से पढ़ा और खुदा की मेहरबानी से वो दौलत इस्लाम से मशर्रफ होगी और तकदीर इलाही वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में भी दाखिल हो गई। और खत का मज़मून दरियाफ्त करके कहने लगी अपने मुलाज़िमों से, जैसा कि फरमाया रब ताला ने
کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا اے دربار والو اور مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے جواب دیا جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کہا انہوں نے کہ ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے کہ جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری ساری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کریں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی کہ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تحقیق میں بیچنے والی اس کی طرف ہدیہ کو پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں دیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا کہ اے بلقیس تمہاری جو مرضی میں آئے کرو۔ بس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد مؤدب کھڑے تھے اور ہزاروں پرند ہوا کے آپ علیہ السلام کے سر پر سایہ دیے رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ علیہ السلام کو بلقیس ملکہ نے بہت سے ہدیے اور تحفے اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ تحائف ارسال فرمائے ہیں۔ یہ سن کر فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہوئی ہیں وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی، 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے لے آؤ۔ غرض یہ کہ یہ تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے حاضر کر دی گئی، اور ادھر جب قاصد آپ علیہ السلام کے پاس تحائف لے کر حاضر ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی شان و شوکت، حشمت و عظمت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تش سونے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کی میدان سونے چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں، اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے اور چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب وہ قاصد اس جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ یہ اینٹیں پردے غائب ہیں تو دل میں خوف کھانے لگے کہ یہ جو تحائف ہم لے کر جا رہے ہیں ان کی چوری کا الزام ہم پر نہ آ جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ تم نے یہ چیزیں چرا کر ان تحائف میں رکھی ہیں اور تم ہم کو فریب دیتے ہو، اور یہ اینٹیں تمہیں نے ان دیواروں سے نکالنی ہیں۔ غرض یہ کہ وہ قاصد ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر تمام تحفے تحائف آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے، اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے۔ پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟
बस जो कुछ मुझको दिया है मेरे अल्लाह ताला ने वो बेहतर है इस चीज़ से कि दिया है तुमको, और जाओ तुम अपने इस तोहफे को ले जाओ और खुश रहो इन तहाइफ के साथ, और अब तुम अपनी हुकूमत में वापस चले जाओ, और अब हम भेजते हैं इन लश्करों को जिनका वो सामना न कर सकेंगे, और हम उनको अब निकाल देंगे बेइज्जत करके उस शहर से। बस वो जलील हो जाएंगे। और ये खबर लेकर बिल्किस के कासिद फौरन वापस चले गए और वहां पहुंचकर मलिका बिल्किस को तमाम अहवाल कह डाला और कहा कि वो साहिब हशमत और अजमत और नबूवत से सरफराज हैं। ये सुनकर मलिका बिल्किस बोली कि वो बेशक नबी होंगे और उनसे कहो कि नबूवत का कोई मौजा दिखा दें, क्योंकि असल दलील पैगम्बरी की मौजा हुआ करती है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम भी कोई मौजा जरूर दिखाएं, तब भी मैं और हम सब आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। और फिर मलिका बिल्किस ने 100 लौंडी और गुलाम सबको एक ही सूरत लिबास पहना कर और टुकड़ा याकूत नासुफ्ता डिबिया में रख कर रवाना किया, और चंद मादियां घोड़े के बच्चे मिले जुले और एक शीशा खाली, ये सब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना कर दिया। इसमें मकसद ये था कि आप अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और इम्तियाज करना मकसूद था। इन सब को अपने काश्तों के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। मलिका बिल्किस ने अपने कासिदों से कहा कि इन सब को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा कर उनसे कहो कि गुलाम और लौंडियों में इम्तियाज करें और इस याकूत नासुफ्ता को सुफ्ता कर दें बगैर आहन और इल्मास के, यानी बगैर कोई औजार इस्तेमाल किए इनमें छेद करें और ये शीशा पानी से भर दें, और वो पानी ना तो आसमान से बरसा हो और ना ही वो जमीन से निकला हो, और फिर जल्द चले आओ मेरे पास इस बात की खबर लेकर। चुनांचे कासिदों ने वो सब लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचाया और वो तमाम शर्तें और बातें जो मलिका बिल्किस ने चलते वक्त कही थी आप अलैहिस्सलाम से बयान कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक सैलाबी आफ्ताबा लाकर सबसे पहले लौंडी और गुलामों के हाथ मुंह धुलाई जाए। लौंडियों ने अपने कफो दस्त धोया, वो सब लौंडियां थी, और जिन्होंने अपने सर अंगुश धोया वो सब के सब गुलाम थे, क्योंकि औरतों और मर्दों में यही आदतें होती हैं। दूसरा एजाज ये था कि याकूत छेददार ने के लिए कीड़े को हुक्म किया, चुनांचे कीड़े ने फौरन छेद कर दिया। और तीसरा एजाज ये कि आप अलैहिस्सलाम ने तमाम अस्प यानी के घोड़े के बच्चों को बंधवा कर सबके सामने दाना घास डलवाया। इनमें से बाजों ने दाने पर जल्दी से सर बढ़ाया और बाजों ने पीछे यानी के बाद में, और आप अलैहिस्सलाम ने फौरन जिन्होंने जल्दी सर बढ़ाया था वो मादियां थी, और जिन्होंने बाद में खाने की तरफ सर बढ़ाया वो नर थे। और फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि घोड़ों को दौड़ाया जाए। जब घोड़े दौड़ने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके पसीने से शीशे को भर दिया। ये वो पानी था कि जो ना आसमान से गिरा और ना जमीन से हासिल किया गया, बल्कि घोड़ों के पसीने का पानी था। गैर ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाशाइस्ता सवालात को बहुत शाइस्ता अंदाज में हल करके और कासिदों को खुल्लत देकर रवाना कर दिया। बस वो कासिद मलिका बिल्किस के पास पहुंचे और तमाम अहवाल बयान कर दिए और तमाम मौज़ात और करामात बिशरा बयान कर दी। और ये सब सुनने के बाद मलिका बिल्किस ने अपने अरकान दौलत से कहा कि बेहतर ये है कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खुद जाऊं और आप अलैहिस्सलाम की अताअत को कबूल कर लूं। ये कहकर मलिका बिल्किस ने असबाब सफ़र का तैयार कराया और अपने साथ लौंडी और गुलाम और बहुत सा लश्कर भी ले लिया और अपने तख्त शाही और दौलत को हफ्त खाने में रख कर हफ्त दर बंद करके कुंजियां अपने साथ ले ली। और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि अपनी इंतजामिया के सपुर्द कर दी और फिर उनसे कहा कि तख्त जुड़ाओ और दौलत पे मदारे सल्तनत है, इसलिए
खूब हिफाजत से रखना। ये कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाने का कसद और अज़म किया। चुनांचे हवा ने जल्दी से आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दे दी कि मलका बिल्किस शहर सबा से अनकरीब हजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने वाली है। और हवा से पहले जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि कुछ खामी भी आप अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की बयान की। वो ये कि मलका की साख पर बहुत बाल है और वो कुछ कम अकल भी है कि उसकी माँ जिनों से ताल्लुक रखती थी और बनिस्बत इंसान के जिन कम अकल होते हैं। ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने के बाद जिन्नात बहुत डरे कि अगर हमारी ये बात झूठी साबित हुई तो हमें बहुत सजा मिलेगी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की बातों की सच्चाई को जानने के लिए और आजमाइश के लिए मलका बिल्किस की राह में अपनी तख्तगाह के सामने हौज बनवा कर इस पर एक पुल शीशे का तैयार करवाया और इस हौज में मछली और मुर्गा भी छोड़ दी। और वो पुल ऐसा था कि ऊपर जाहिर मालूम हुआ। और फिर जब बिल्किस मलिका उस पर आएगी तो यकीन है कि वो उसे पानी समझेगी और पानी के धोखे में अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठाएगी तो उसकी पिंडलियों के बाल जाहिर हो जाएंगे। ये कि यही सोच कर ये सब तैयार किया गया और फिर मलिका उस जगह से गुजरी जैसा कि कहा रब ताला ने के और कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ए दरबार वालों, तुम में से कोई है कि ले आवे मेरे पास तख्त बिल्किस का, पहले इससे कि वो आवे मेरे पास मुसलमान होकर। यह सुनकर जिनों में से एक जिन बोला कि मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास उसका तख्त, पहले इससे कि तुम उठो अपनी जगह से और तहकीक मैं अलबत्ता इस पर जोर आवर हूँ और अमानतदार भी हूँ। अमानतदार इसलिए कहा कि उस तख्त में जवाहर जड़े हुए थे जो कि नहायत ही कीमती थे। और फिर आप इस्लाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं इससे भी जल्दी ले आऊंगा, पलक झपकते से भी पहले, जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा उस शख्स ने के नजदीक उसके इल्म था, यानी इसमें आजम अल्लाह ताला का वो जानता था। वो बोला कि मैं ले आऊंगा तेरे पास तख्त बिल्किस का, पहले इसके कि वो फिर आवे तेरी तरफ, नजर तेरी यानी कि किसी तरफ देखने से पहले तुम्हारी नजर में सामने ही तख्त आ जाएगा। इससे कबल वर्ष आसिफ बरकिया के इसमें आजम पढ़ते ही एक ही पल में तख्त बिल्किस का सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ मौजूद हुआ। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तख्त में रतो बदल करके दिखाओ, यानी कि इसमें तब्दीली करो ताकि मलिका बिल्किस की समझ बूझ का इम्तहान लिया जा सके। जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा हजरत सुलेमान ने के रूप बदल कर दिखा इस औरत को उसका तख्त, ताकि हमको मालूम हो जाए कि उसमें सूझबूझ है या नहीं, या उन लोगों में से उसका शुमार है कि जिसको समझ बूझ नहीं होती। और रूप बदलना ये था कि मलिका बिल्किस का तख्त जड़ाव था और अब मलिका बिल्किस के तख्त के जड़ाव उखाड़ कर नए सिरे से दूसरे अंदाज में नस्ब कर दिए गए। ये इसलिए किया गया कि मलिका की सूझबूझ को आजमाया जाए और फिर अपना मौजा दिखाना भी मकसूद था। चुनांचे कार पर्दाजों ने ऐसा ही किया। बस जब मलिका बिल्किस इस हौज के किनारे पर आई और पुल शीशे का था जो कि आला किस्म की कारीगरी से तैयार कराया गया था, इस पर इसकी नजर पड़ी और उसको यकीन हुआ कि शायद यहाँ पानी है। तब उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। इससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि पिंडलियों पर बाल नहीं और ये बात जिन्नात ने झूठ कही थी। और जब बिल्किस मलिका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और फिर उसने अपने तख्त को पहचाना जैसा कि कहा रब ताला ने, और जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो किसी ने कहा कि ऐसा है तेरा तख्त। वो अपने तख्त के पास जाकर बोली कि गोया ये वही तख्त है और हमको मालूम हो चुका है कि किसी जरिए से, और हम तो मुसलमान हो चुके हैं। इस बात से भी मालूम हो गया कि मलिका बिल्किस अक्लमंद और होशियार थी। और किसी ने इससे कहा कि अंदर महल
में चलो। और फिर जब वो महल के अंदर गई तो देखा कि महल के अंदर है। फिर उसने अपनी पिंडलियों को खोला तो फिर किसी कहने वाले ने कहा कि ये शीशे का जड़ा हुआ महल है। फिर वो बड़ी हैरत ज़दा हुई और बोली कि जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा बिल्किस ने कि ऐ मेरे परवरदिगार, तहकीक मैंने जुल्म किया, अपनी जान पर उम्मती हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ वास्ते खुदावंदे कदूस के जो परवरदिगार है तमाम जहानों का। एक और रवायत में ये भी लिखा गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे और उसमें पत्थरों की जगह पर शीशे का फरिश्ता और देखने वाले को दूर से पानी नजर आता था। इसी वजह से मलका बिल्किस ने अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटाया और फिर जिन्होंने जो बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कही थी, मलका बिल्किस की पिंडलियों पर बाल बकरियों की मानिद है, सच साबित हुई। इसके लिए आप अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को एक दवा दी और फिर मलका बिल्किस को अपने निकाह में ले आए और एक मकान नहायत आलीशान पुरतकल्लुफ बनाकर मलका बिल्किस को पेश किया और वो नहायत शान व शौकत के साथ आप अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगी। एक दिन मलका बिल्किस ने कहा कि ए नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप हर रोज तख्त पर बैठ कर हवा पर सैर करते हैं और तमाम आलिम के गिर्द घूमते फिरते हैं। किसी दिन मुझको भी अपने साथ लेकर जाएं ताकि मैं फलां जजीरे में जाकर अजीबो गरीब नज़ारे देखूं। ये सुनकर एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते शाही को हुक्म किया कि ए तख्त, हमको इस जजीरे पर जो 7 दरिया के जजीरे हैं पहुंचा। बस आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हवा ने आप अलैहिस्सलाम को तख्त समेत उस जगह पर पहुंचा दिया। मलका बिल्किस वहाँ का सब्जा और आबे रवां देख कर बहुत खुश हुई और देखा कि वहाँ दरियाई घोड़े हैं और उन घोड़ों के बाजू में पर हैं, यानी के परों वाले और उड़ने वाले घोड़े देखकर मलका बेहद खुश हुई। मगर आप अलैहिस्सलाम को देखते ही वह दरियाई घोड़े परिंदों की मानिंद उड़कर वहां से चले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जुनून को हुक्म दिया कि फौरन इन परों वाले घोड़ों को पकड़कर हाजिर किया जाए। वो जिन्नात बोले कि ए नबी अल्लाह, हम उन घोड़ों को नहीं पकड़ सकते मगर वहाँ समंदरों का एक जिन है और वो आप अलैहिस्सलाम से बागी होकर इस दरिया की गहराई में छुपा पड़ा है और अब ये काम वही कर सकता है। अगर हुक्म हो तो उस जिन को पकड़ कर ले आए, मगर वो जिन एक ही सूरत में पकड़ा जाएगा, यानी वो एक ही सूरत में बाहर आएगा जब ये ऐलान कराया जाएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि उस जिन को हर सूरत में हाजिर किया जाए। रज़ आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तमाम जिन्नात तमाम जजीरों में पानी के इर्द गिर्द दरियाओं के इर्द गिर्द जोर जोर से ऐलान करने लगे, कहने लगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है, अब हम आज़ाद हैं और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ाब व सज़ा से निजात पाई। जिन जगह जगह मुनादी करते रहे, दरिया के गिर्द जोर जोर से पुकारते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मरने की खबर सुनकर वो जिन भी दरिया से खुश होकर बाहर निकल आया। फिर वो बोला कि अब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ाब व सज़ा से निजात पाई और हम चैन और राहत से रहेंगे और जहान में खूब शरारतें करेंगे। इसी दौरान बाकी जिन्नात ने उस पर कमंड डाली, उसे गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने नजर गज़ब जब उस सबंदरी जिन पर डाली तो वो खौफ से कांपने लगा और कहने लगा कि ए नबी अल्लाह, मुझको अमान दो और जान बख्शी करो और मैं आपका फरमा बरदार हूँ और जो आप हुक्म देंगे बसरो चश्म बजा लाऊंगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अपनी जान बख्शी चाहता है तो देख फलाने जजीरे में परिंदों की मानिंद घोड़े हैं, उनको मेरे वास्ते पकड़ कर ले आओ। वो जिन बोला कि ए नबी अल्लाह, बगैर हीला और हिकमत के वो घोड़े मेरे हाथ नहीं आएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो बोलो तुम इस वक्त क्या चाहते हो। जिन बोला कि वो घोड़े फलाने चश्मे
से पानी पीते हैं, चंद दिनों को मेरे साथ रवाना कर दीजिए। चश्मे का पानी निकाल कर दूसरी तरफ डाल देंगे और उस चश्मे में पानी की बजाय शराब भर दी जाएगी। जब वो उड़ने वाले घोड़े वो पानी समझकर वो शराब पी जाएंगे तो नशे में आ जाएंगे और फिर हम कमंड डालकर उन सब को पकड़ लेंगे और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर देंगे। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और जिनों को भी उस जिन के साथ रवाना कर दिया और फिर उन्होंने वहां जाकर 40 दरियाई घोड़े पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किए। उस वक्त असर की नमाज का वक्त हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखने में मगन थे। उनके परों पर हाथ फेर कर महसूस हो रहे थे, यहाँ तक कि असर का वक्त भी रुखसत होने लगा। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो दुनिया के मालो दौलत में ऐसा मशगूल हुआ कि नमाज असर जाने पर हुई। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन सजदे में सर रख दिया, ज़ारो ज़ार रोने लगे और बराबर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। चुनांचे जैसा कि फरमाया रब ताला ने जिस वक्त रूबरू लाए गए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाम को खासे घोड़े। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तहकीक मैंने दोस्त रखा माल को अपने रब की इजाज़त से यहाँ तक के सूरज छुप गया पर्दे में। फिर कहा, लाओ इन घोड़ों को मेरे पास, लाओ इन घोड़ों को मेरे पास। बस शुरू किया हाथ फेरना, पाँव और गर्दन इन घोड़ों पर। एक रवायत है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, आफताब ठहर गया, उसको डूबने ना दिया गया, जहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वक्त पर नमाज असर की पढ़ ली, तब आफताब गरूब हुआ। और ये भी एक रवायत में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर काट डाले और फिर उन पर दोबारा पर पैदा ना हो सके। ताजी इन्हीं की नस्ल से हैं। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अल्लाह अकबर। लाखों दरूद व सलाम हमारे आका मौला बीबे खुदा सैयदुल अंबिया खातमुल नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया पर, तमाम फरिश्तों पर, तमाम औलिया पर, तमाम इमामों पर, तमाम बुजुर्गान दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।